Good evening, friends. Today, on the request of some of the competitive examinees, we are starting a new series that is basics of English language and questions also and discussions also. Particularly the questions that come topic wise for error finding, by pointing out the part of the error. And so we are going to have today the very first topic, error in the use of noun. So before we start the questioning, let us now understand what kind of errors can be asked in noun. नाउन में किस तरह का एरर आ सकता है? तो देखिए, नाउन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सिंगुलरिटी एंड प्लुरलिटी नाउन के बारे में, कि कौन सा नाउन प्लूरल फॉर्म में ही केवल यूज होता है, कौन सा नाउन केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है. तो unless and until we understand that there are certain typical nouns which are used only in singular form or in plural form, तो इसके लिए क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखा जाए. क्योंकि जनरली हम लोग जो बोलते हैं, इवन क्लास 5 से लेकर देखिए 10 तक के बच्चे, 11 12 फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले ग्रेजुएशन के बाद, all the students practice grammar, but some typicals of the topics they never bother about. They just think, okay, we know noun is the name of a person, place and thing. There are 5 types of noun, common noun, proper noun, abstract noun, collective noun, countable, uncountable, like that they define noun. But they actually do not understand that when we are going to learn noun, you must know what are the particulars of the noun. For example, you should know noun, singular and plural, and also some of the genders that are common genders, and they are always used with the male as well as female. So to talk about this, let us go for some of the typicals of singular to plural in noun, which we generally come across and we often commit mistake. Like you may ask, sir, tell us about some of the typical nouns which are always treated in singular. For example, you see luggage. Luggage is never used as luggages. News is never used in plural. News is always singular. We always say this is the news, or this news is a good news, this news is a bad news. We never say news is. If we really want to make them plural, then we will write items of news. These items of news are good items or good news. We will always take advice, advice, in singular form only. If we really want to make plural, then we'll say the pieces of advice. He gave us several pieces of advice. We will never write advices. It is wrong. एडवाइस का एडवाइसेस कभी नहीं लिखेंगे. एडवाइस का प्लूरल अगर बनाना है तो सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइस. द टीचर गेव अस सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइस टू अस. अब देखिए, स्टमक जनरली क्या होता है, STOMACH. स्टमक को प्लूरल बनाते समय लोग ES डाल देते हैं, वो गलत है. स्टमक का स्टमक्स होता है, एस केवल डालना है. स्टमक, स्टमक्स. लोकस, जो जनरली मैथ पढ़ाने वाले टीचर को मालूम है, लोकस का होता है लोसी, LOCI. तो ये उसका सिंगुलर फॉर्म है लोकस, LOCUS. प्लूरल फॉर्म है लोसी. उसी तरह से इको, साउंड का जो है ECHO, सीधे S लगा दीजिए, ECHOS. जनरली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे फोटो है PHOTO, तो लोग सोचता है वो वाला के बाद ES लगाना. ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस भी है. फोटोज में PHOTOS, ES लगाने की कोई जरूरत नहीं. जैसे सोलो है, SOLO, सोलो, सिंगल सॉन्ग, तो उसका प्लूरल सोलोज हो जाएगा, SOLOS. ES लगाने की जरूरत नहीं है. ये जरूरी नहीं है कि जो ओ में एंड होगा उसमें ES ही लगाना है. वैसे ही लोकस का लोसी हो गया, इको का इकोज हो गया, सोलो का सोलोज हो गया, क्राई का येस लगता है, CRI ES हो जाता है, वाई हट करके येस. वैली में केवल एस लगाई, VALLEYS, वैलीज. वैली, वन वैली, मेनी वैलीज, VALLEYS. पिक पॉकेटर कभी नहीं होता है, जो पॉकेट मार को पिक पॉकेट ही बोला जाता है.
और ज्यादा पॉकेट मार है तो पिक पॉकेट्स बोलिए, उसमें आपको पॉकेटर्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसका सही आंसर होगा पिक पॉकेट। अच्छा, जनरली लोग कहता है ही इज माई कजिन ब्रदर, रॉन्ग। कजिन ब्रदर को कजिन ही कहा जाता है, देर इज कजिन सिस्टर को भी कजिन कहा जाता है। देर इज नो नीड टू से कजिन ब्रदर एंड कजिन सिस्टर, ऑलवेज से कजिन, शी इज माई कजिन, ही इज माई कजिन, तो समझ में आ जाएगा कि वो भाई है, चचेरा भाई, और ये चचेरी बहन है। वैसे ही बैड ड्रीम नहीं होता है, नाइट मेयर होता है। बैड ड्रीम इज ऑलवेज कॉल्ड नाइट मेयर। अब देखिए, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, ये कॉमन जेंडर है। तो इसको जब भी आप लिखेंगे, द टीचर वर्क्स विथ हर टूल्स, द टीचर वर्क्स विथ हिज टूल्स, बोथ आर करेक्ट। इसमें आपको फेमिनिन जेंडर भी यूज कर सकते हैं, हिज और हर दोनों का यूज हो। उसी तरह से ए चाइल्ड ऑलवेज लर्न्स फ्रॉम हर क्लास, और ए चाइल्ड ऑलवेज लर्न फ्रॉम हिज क्लास, चाइल्ड से कॉमन जेंडर। उसी तरह से क्लर्क, ए क्लर्क वर्क्स इन ए ऑफिस, सी ऑलवेज गोज टू हर ऑफिस, ही ऑलवेज गोज टू हिज ऑफिस। आप ही यूज करेंगे तो मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा, सी करेंगे तो फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, तो ये कॉमन जेंडर है। एडवोकेट भी उसी तरह से। अब देखिए, दूसरी बात है, कभी कभी ये ड्यूअल जेंडर भी कहा जाता है। तो जैसे आपको बोलना है, ए टीचर शुड प्रैक्टिस व्हेन ही और सी इज टीचिंग इन हर क्लास और हिज क्लास, बोथ आर करेक्ट, हिज एंड हर क्लास। अब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके बारे में थोड़ा देख ले। पहला क्वेश्चन है, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। अब देखिए, फिर एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। सबसे बड़ी बात है कि सीधे पता चलता है कि द नाउन पेजेस आफ्टर पेजेस इज रॉन्गली यूज। करेक्ट आंसर होना चाहिए पेज आफ्टर पेज। Why? You ask, why, sir? The very simple answer. If a noun comes on the either side of a preposition, अगर किसी प्रपोजिशन के दोनों साइड में नाउन आता है तो वो हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होगा। जैसे पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज। यहां देखिए, माई सिस्टर हैज रेड, आफ्टर तो प्रेपोजिशन है और उसके दोनों साइड में नाउन है, पेजेस आफ्टर पेजेस। तो इसके कारण हमारा करेक्ट आंसर होगा, माई सिस्टर हैज रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल, नेवर से पेजेस आफ्टर पेजेस। कोई भी नाउन के पहले भी अगर उस दो नाउन हुआ, उसके बीच में यदि एक प्रेपोजिशन आ जाए तो समझिए कि वो नाउन को हमें सिंगुलर में यूज करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, माई सिस्टर हैज रेड पेज आफ्टर पेज। अब आइए, एल्म्स, एल्म्स मीन्स होता है भिक्षा देना किसी को। एल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, पुअर खुद इटसेल्फ इज ए क्लास ऑफ पुअर पीपल, तो उसमें एस लगाने की क्या जरूरत है। द राइट आंसर इज एल्म्स आर गिवन टू द पुअर, नो नीड ऑफ यूजिंग पुअर्स, पुअर इटसेल्फ, द पुअर मीन्स द होल क्लास ऑफ पुअर पीपल। ये कॉमन नाउन के रूप में यूज होता है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट द पुअर। एल्म्स आर गिवन टू द पुअर, deprived class, never use the poor, it is wrong. The beautiful surrounding of the place enchanted me. सराउंड एक खुद वर्ब है, सराउंड में यदि आईएनजी लगाइएगा तो जैसे दिस रूम इज सराउंडिंग अ ब्यूटिफुल वॉल, दिस रूम इज सराउंडिंग अ ब्यूटिफुल कॉरिडोर। तो सराउंडिंग इटसेल्फ इज ए वर्ब, सराउंड में आईएनजी लगाइएगा तो आईएनजी फॉर्म का वर्ब हो जाएगा, लेकिन जब तक उसमें एस नहीं कीजिएगा, सराउंडिंग्स नहीं कीजिएगा, वो नाउन होगा ही नहीं। तो ये राइट आंसर होगा, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस enchanted me। सराउंडिंग्स यहाँ नाउन हो गया और सराउंडिंग वर्ब हो गया, देयरफॉर द राइट आंसर इज द ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस enchanted me। सराउंड जो है खुद वर्ब है, सराउंड में आईएनजी लगाइएगा तो सराउंडिंग हो जाएगा। जैसे दिस रूम इज सराउंडेड बाई कॉरिडोर, by a balcony। The manager put forward a number of criterions। देखिए, क्रिटेरिया एक ऐसा वर्ड है जो लिखा जाता है क्रिटेरियन सिंगुलर में, लेकिन पढ़ा जाता है क्रिटेरिया, CRITERION, और उसका प्लूरल होता है क्रिटेरिया, CRITERIA। तो खुद अब क्रिटेरिया प्लूरल है तो उसमें एस लगाने की क्या जरूरत है, सीधे लिखिए, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्रिटेरिया, CRITERIA।
उसमें एस और ए एन लगाने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल वर्ड है क्रिटेरिया, CRITERION, एन इज साइलेंट, और उसका प्लूरल फॉर्म है CRITERIA। तो द राइट आंसर इज द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्रिटेरिया, CRITERIA। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। टेक्स, जब भी टेक पेन, पेन्स होता है, इट इज ए प्रोवर्ब दैट मीन्स टू वर्क हार्ड। ही टेक्स पेन्स, he takes pains over his work. Taking pains means working hard. The last question, the sceneries of Kashmir is very charming. Wrong. The right answer is the scenery. The scenery itself is in the singular form, it is never used in plural form. The scenery of Kashmir is very charming. वैसे ही प्लूरल में देखिए, बिलीफ, BELIEF का बिलीफ्स हो जाएगा, BELIEFS। स्कार्फ में केवल एस डाल दीजिए, स्कार्फ हो जाएगा। क्लिप में केवल एस डाल दीजिए, क्लिप्स हो जाएगा, CLIFFS। पी पी हेन का पी हेन्स हो जाएगा प्लूरल। यस, डायनेमो का डायनेमोस हो जाएगा, DYNAMOS। मैन हेटर का मैन हेटर्स हो जाएगा इस प्लूरल में। ओएसिस, OASIS, OASES हो जाता है। देखिए, OASIS विल चेंज टू OASES। उसी तरह से लास्ट में फोटो, PHOTO विल चेंज इनटू प्लूरल फोटोज, PHOTOS। और माउस का माइस होता है। तो ये छोटे बच्चे के लिए भी जरूरी है जानना, और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने वाले को तो एकदम जानना है कि BELIEF में कहीं आपको बिलीव्स नहीं लिख देना है, बिलीव्स होता है, BELIEFS। धारणा, विचार, स्कार्फ में केवल एस डालना है। इस तरह से हम लोग हर सीरीज में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में अभी नाउन शुरू किए हैं। द नेक्स्ट वन वी विल स्टार्ट इन नाउन ओनली, इट विल कंटिन्यू। थैंक यू, आई एम श्योर this will help a lot. The written material of this discussion will be also posted on WhatsApp. Thank you very much. Thanks a lot.